ભરેલી ભલી અનંત અનંતનાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવિતે વ્યર્થ આપવાથી નિજમાંથી મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂભૃતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વતત્વાનામ વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે વંદે તદ્ગુણલબ્ધયે. જય જિનેન્દ્ર. स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 26 जीव के स्वरूप का वर्णन चल रहा है. उसमें योग पर चर्चा चल रही है. योग दो प्रकार का है. प्रश्न ગઈકાલે એક નાનો પ્રશ્ન હતો, નાનો કે મોટો, કે કારણ પરમાત્મા અને કાર્ય પરમાત્મા વિશે થોડુંક સમજાવો તો મહેરબાની, વિનંતી. તમે શું સમજ્યા છો એ કહો પહેલા. હું સમજ્યો નહોતો, પણ કાલે સ્વાધ્યાય પૂરો થયા પછી આપે સમજાવ્યું કે કારણ પરમાત્મા એટલે મૂળભૂત શુદ્ધ દ્રવ્ય અને કાર્ય પરમાત્મા એટલે પર્યાય એની. એવું તો નથી કીધું કે શુદ્ધ દ્રવ્ય દ્રવ્ય જે કારણ છે દરેકનું. એટલે છેલ્લે એમ કીધું હતું કે કારણ અરે કાર્યના શબ્દના અર્થ પહેલા સમજવો. કારણ કોને કહેવાય છે ને કાર્ય કોને કહેવાય છે? જેમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય એનું નામ કારણ. કારણ સ્ત્રોત છે અને કાર્ય પરિણામ, એનો પ્રોડક્ટ છે, પરિણામ છે. તો કારણ પરમાત્મા એટલે જેમાંથી કાર્ય પરમાત્માની ઉત્પત્તિ થાય. કાર્ય પરમાત્મા એટલે જીવની શુદ્ધ પરિણતિ, એનું નામ કાર્ય પરમાત્મા. શુદ્ધ પરિણતિ એટલે અનંત ચતુષ્ટય રૂપ જીવનું થવું, સિદ્ધ રૂપ જીવનું થવું, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ રૂપ થવું, એનું નામ કાર્ય પરમાત્મા. કાર્ય પરમાત્મા છે. પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થવાનું જે કારણ છે તે કારણ પરમાત્મા. તો પરિણતિ ક્યાંથી આવે છે?
દ્રવ્યમાંથી આવે. દ્રવ્યમાંથી, કારણમાંથી. એટલે દ્રવ્ય એ કારણ છે, પર્યાય તે પરિણામ, કાર્ય છે. કાર્ય છે. શક્તિમાંથી અભિવ્યક્તિ હોય છે, શક્તિની અભિવ્યક્તિ હોય છે. શક્તિ કારણ છે, અભિવ્યક્તિ કાર્ય છે. તો જે શક્તિ રૂપે જે પરમાત્મા તત્વ પડેલું છે એનું નામ કારણ પરમાત્મા છે. એટલે હવે સમજવાનું કેવી રીતે. જ્ઞાન કારણ છે અને મતિ જ્ઞાન, શુદ્ધ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન, મનઃપરિજ્ઞાન અને કેવલ જ્ઞાન કાર્ય છે. સમજમાં આવી વસ્તુ? જ્ઞાન કારણ છે અને એની પરિણતિઓ 5 પ્રકારની હોય છે, એ કાર્ય છે. શુદ્ધ પર્યાય એ કાર્ય એમ થયું. શુદ્ધ પર્યાયનું નામ કાર્ય નહીં. પર્યાય શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય, પણ એ કાર્ય છે. અશુદ્ધ દ્રવ્યનું કાર્ય અશુદ્ધ પરિણતિ છે, શુદ્ધ દ્રવ્યનું કાર્ય શુદ્ધ પરિણતિ છે. તો ઉપાદાન જો શુદ્ધ હોય તો એનું કાર્ય પણ શુદ્ધ હશે. કારણ સદૃશમ કાર્ય. કારણ એટલે ઉપાદાન. ઉપાદાન જેવું હોય એવું કાર્ય થાય છે. તો દ્રવ્ય તો હંમેશા શુદ્ધ જ છે, અશુદ્ધિ તો પર્યાયની અંદર આવે છે. તમારું દ્રવ્ય અત્યારે શુદ્ધ છે? શુદ્ધ જ છે ને. પરિણતિ અહીંયા કેમ છો તમે? સિદ્ધ લોકમાં કેમ નથી? પર્યાય હે, અશુદ્ધ પર્યાયને લીધે 4 ગતિમાં પરિભ્રમણમાં અત્યારે આ ગતિમાં હું છું. પણ જો મૂળ દ્રવ્યમાંથી જ જો એનું કારણ હોય, દ્રવ્ય કે જેમાંથી દ્રવ્ય સદા શુદ્ધ છે, એ કઈ અપેક્ષાથી છે એ સમજાવો તમે. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં અથવા તો પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી. પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય એનું કારણ સમજાવો તમે કે શા માટે એને શુદ્ધ કહ્યું છે. જો શુદ્ધિ 2 પ્રકારની છે, એક પર્યાય અપેક્ષા શુદ્ધિ અને એક પર દ્રવ્ય અપેક્ષા શુદ્ધિ. કે એક દ્રવ્યમાં બીજા દ્રવ્યનો પ્રવેશ નથી, તે અપેક્ષાએ બધા દ્રવ્યો સદૈવ શુદ્ધ છે. આત્માની જ વાત નથી કરતા, બધા. એક દ્રવ્યમાં બીજા દ્રવ્યનો ક્યારે પણ સંયોગ થતો નથી, પ્રવેશ થતો નથી. એ અપેક્ષાએ બધા દ્રવ્યો પોતપોતાના અંદર જ સ્વચતુષ્ટયમાં સ્થિત છે. એ અપેક્ષાએ બધા દ્રવ્યો શુદ્ધ છે. દ્રવ્ય અપેક્ષા શુદ્ધ છે. આનું નામ શુદ્ધિ છે. પરના સંયોગ રહિતપણાની અપેક્ષા શુદ્ધિ છે. એનો અર્થ એમ નથી કે ત્યાં દ્રવ્ય કર્મ, નૌકર્મ, ભાવ કર્મ ઇત્યાદિ નથી. મલિનતા નથી એમ નથી, મલિનતા જ છે, પરદ્રવ્યનો સંયોગ નથી. ની મલિનતા છે એ દ્રવ્યની છે. બીજાનો સંયોગ નથી, બીજો પ્રવેશ નથી કર્યો. એમાં કોઈ આત્મામાં પૂતગલ પ્રવેશ નથી કરતો, આત્મા જ મલિન થાય છે પૂતગલના પ્રભાવથી. તો એ મલિનતા જે છે એ અશુદ્ધ દ્રવ્ય છે, અને પરનો સંયોગ નથી એટલે શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યમાં મલિનતા છે એટલે અશુદ્ધ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યમાં પરનો સંયોગ નથી એટલે શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. તો દ્રવ્યની મલિનતા એના પોતાના વિભાવ, વિકાર, અજ્ઞાન, મોહ, મિથ્યાત્વને લીધે છે. હા, એ દ્રવ્યનું ઉપાદાન એવું છે. કાલે વાત આવી હતી કે અબદ્ધ સ્પષ્ટ, તો એ કઈ રીતે?
એ જ તો ને, એની એ જ અપેક્ષા વાત કે સંયોગ પરનો સંયોગ નથી, એટલે અબદ્ધ સ્પષ્ટ અનન્ય અસંયુક્ત અવિશેષ. એ આ પરના સંયોગની અપેક્ષા છે કે પરથી અબદ્ધ સ્પષ્ટ છે, કોઈ દ્રવ્યથી બંધાયેલો નથી અને સ્પર્શિત નથી, સ્વતંત્ર છે, અનન્ય છે, અન્ય અન્ય નથી, જીવ જીવરૂપ જ છે, અન્ય અન્ય નથી, અવિશેષ સામાન્ય છે, અસંયુક્ત બીજા સાથે સંયુક્ત નથી. શક્તિ અપેક્ષા એ કહેવાય છે, તો એ કઈ રીતે ઘટાવવું? એ શક્તિ અપેક્ષા જ કીધું ને કે એમાં કોઈ પણ અન્ય દ્રવ્યનો પ્રવેશ નથી, અને જે જે શક્તિઓ અભિવ્યક્ત થવાની છે, જે જે અભિવ્યક્તિ થવાની છે, એ બધી એના અંદર યોગ્યતા છે, સામર્થ્ય છે. આ વાતને હજારો વાર આપણે સમજ્યા. હા, સાચી છે, પણ અત્યારે બે રીતે શુદ્ધિ આપ બતાવો છો. એક તો એ કોઈ દ્રવ્યમાં ભળતું નથી, દ્રવ્ય સ્વતંત્રતા, હા, એ એક. અપેક્ષા. અને બીજું આપે અભ્યાલ કહ્યું કે એમાં આવું થવાની યોગ્યતા છે, એ અપેક્ષા એ યોગ્યતા સદૈવ છે. એટલે બે અપેક્ષા એ યોગ્યતાની અપેક્ષા એની શુદ્ધ કહેવાય છે. કઈ શુદ્ધ નિશ્ચય એની દ્રષ્ટિથી કહેવાય છે. કહેવાઓ અલગ. તમારે કોઈ રાજકુમારમાં રાજા બનવાની શક્તિ છે, એટલે એને જન્મતા જ એને કીધું કે આપણે રાજા જન્મ્યો છે. ભાઈ, કોનો જન્મ થયો છે? રાજકુમારનો. રાજાનો જન્મ થયો છે, રાજકુમારનો નહીં, રાજાનો. રાજાનો. કેમ? શક્તિ અપેક્ષા, એના અંદર રાજા થવાની શક્તિ છે. સમજમાં? શક્તિ વસ્તુ સમજો. શક્તિ એટલે વર્તમાનમાં એવો નથી, પણ ભાવિ કાળમાં એવા થવાની સંભાવના, એના અંદર સામર્થ્ય છે. એનું નામ શક્તિ. કે એના અંદર એ શક્તિ વર્તમાનમાં મોજૂદ છે. જો તમે કેટલું દૂર જોઈ શકો? કેટલું દૂર જોઈ શકો? અહીંયાથી મતલબ 10 મીટર, 15 મીટર, 20 મીટર, 25 મીટર દૂર જોઈ શકો છો. મહેન્દ્રભાઈ એટલું જોઈ. હવે અત્યારે તમે 25 મીટર દૂર જોઈ શકો કે નહીં? એ તમારા અંદર શક્તિ છે કે નહીં? એ તમારા અંદર શક્તિ છે, પણ અત્યારે તમે કેટલું જોવો છો? 10 મીટર. અત્યારે તો તમે આટલો જ જોવો છો, 2 મીટર. પણ 25 મીટર જોવાનું સામર્થ્ય હંમેશા છે. જ્યારે જોશો ત્યારે એની અભિવ્યક્તિ થશે, પરિણતિ રૂપ. જ્યારે નહીં જોશો ત્યારે તમારી સામર્થ્ય છે એ કંઈ ગયું. તમને આત્મસિદ્ધિ કંઠસ્થ છે? કંઠસ્થ છે ને? હવે અત્યારે તમારા ઉપયોગમાં ચાલી રહી છે, પણ તમે કહો કે મને યાદ છે કે નહીં? તમને યાદ ક્યાં યાદ છે? તમે બતાવો. એ સ્મૃતિ ક્યાં પડેલી છે? એ લબ્ધિ રૂપમાં પડેલી છે, ઉપયોગ રૂપમાં નથી. એમ આપણી જેટલી શક્તિઓ છે એ આત્મામાં સ્વભાવમાં શક્તિ રૂપમાં પડેલી છે. એની જ્યારે અભિવ્યક્તિ થશે એ અપેક્ષા એને કીધું કે દ્રવ્યમાં એક જે શક્તિ છે એ શક્તિ ક્યારેય નષ્ટ નથી થતી. એ શક્તિ ઉપર સર્વથા એના ઉપર આવરણ આવતો નથી. જો સર્વથા એના ઉપર આવતી અસત થઈ જાય. એટલે કીધું કે શક્તિ હંમેશા શુદ્ધ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? એ શુદ્ધિની અપેક્ષા સમજો. શુદ્ધિની અપેક્ષા પરિણતિ નથી. આપણે પરિણતિ એટલે જીવની શુદ્ધ પરિણતિ એટલે રાગ દ્વેષ રહિત પણ. એ શુદ્ધ પરિણતિ છે. પણ અત્યારે રાગ દ્વેષ રહિત થવાની શક્તિ છે, પણ રાગ દ્વેષ યુક્ત મલિનતા છે. એટલે દ્રવ્ય જ્યારે રાગ દ્વેષ યુક્ત હોય છે ત્યારે એને અશુદ્ધ દ્રવ્ય કહેવાય છે.
પણ રાગ દ્વેષ રહિત થવાની સામર્થ્ય છે, એ અપેક્ષા એને શુદ્ધ કહેવાય છે. સામર્થ્ય અપેક્ષા છે, એ વર્તમાનમાં છે નહીં. ને એ સામર્થ્ય સદાકાલ છે. હા, અને એક પરદ્રવ્યની અપેક્ષા શુદ્ધિ છે કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં ક્યારેય યોગ થતો, બધા દ્રવ્ય સ્વતંત્ર રહે છે. સ્વતંત્રતાનું નામ જ શુદ્ધિ છે. કોઈ બીજામાં પ્રવેશ કરતો, પણ કોઈ વર્તમાનમાં જ એમ માની લે કે હું વીતરાગ છું અને વીતરાગ છે નહીં, અને માને કે વીતરાગ છું, તો એ ભ્રમ છે. વીતરાગ માનવાનો નથી, વીતરાગ થવાની શક્તિ માનવાની છે. સામર્થ્ય છે અંદર. એ શક્તિ જ્યારે એકવાર માનીશું તો એ શક્તિને અભિવ્યક્તિનો પુરુષાર્થ કરીશું. જીવ શું કરે છે? નિશ્ચયનયાભાસી આવી રીતે કરે છે કે એ શક્તિને માનતો નથી, એ અભિવ્યક્તિને માની બેઠો છે કે ભાઈ હું, શાસ્ત્રમાં એમ આવે આત્મા કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અનંત આનંદ સ્વરૂપ છે, અનંત સુખ સ્વરૂપ છે, અનંત દર્શન સ્વરૂપ છે, એમ શાસ્ત્રમાં આવે તો એ એમ માની બેઠો છે કે હું અનંત જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, અનંત દર્શન સ્વરૂપ છું, એમ માની બેઠો છે. પણ એમ માનવાનું નથી, એના અંદર એવી શક્તિ છે. એ શક્તિ ઉપર શ્રદ્ધા કરો. શ્રદ્ધા ક્યાં કરવાની છે? શક્તિની શ્રદ્ધા કરવાની છે. આણે શું માની શું રાખ્યું છે પોતાને કે અત્યારે હું જ છું, અભિવ્યક્તિરૂપ માન્યતા કરી નાખી છે ને ત્યાં તે મિથ્યાત્વનું પોષણ કરે છે. કેમ કે જે દશા નથી એવી દશારૂપ પોતાની જાતને માનવું એ મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે, એ ભ્રમ કહેવાય છે. પણ એની શક્તિની જે માને નહીં એ મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. જે સ્વભાવની શ્રદ્ધા નથી કરતો, એટલે સ્વભાવ દ્રષ્ટિ, એનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ. કે જે સ્વભાવની શ્રદ્ધા નથી, શક્તિની શ્રદ્ધા નથી, એનું નામ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ એનું નામ નથી કે જે પોતાની જાતને કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન, અનંત ચતુષ્ટય માને છે, એનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી, એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ એનું નામ છે કે જે પોતાની જાતને, સ્વભાવને, કે મારા અંદર અનંત ચતુષ્ટય રૂપ થવાનું સામર્થ્ય છે, એ સામર્થ્ય ઉપર જેની દૃષ્ટિ છે, શ્રદ્ધા છે, ને તે રૂપ પોતાને માને છે કે આવો હું દ્રવ્ય સ્વભાવી આત્મા છું. એનું નામ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ગડબડ ગોટાળા એટલા બધા ચાલે છે. એ ઉપયોગની અપેક્ષા કીધું છે કે કોઈકને આપણે ટોપીરૂપ વિચારીએ તો આપણે ટોપીરૂપ એ આકારરૂપ થઈ જઈએ આપણે, પણ વાસ્તવમાં પરદ્રવ્યરૂપ કોઈ થતો નથી. આપણો ઉપયોગ તત્કાલ ઈ જ્ઞેયનો આકાર ગ્રહણ કરે છે, જ્ઞેય રૂપ થતો નથી. તો આપણે પોતાની જાતને આપણે હું કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એમ માનીએ તો કેવલ જ્ઞાન થઈ ન જઈએ, પણ ઉપયોગ એ શબ્દાકાર થઈ જશે. કેવલ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન એ શબ્દાકાર ઉપયોગ થશે, કેવલ જ્ઞાન રૂપ ન થશે. સમજવા આવે? જેમ આપણે ટોપી જોઈએ તો ટોપીનો આકાર ગ્રહણ કરશે, બાહ્ય આકાર છે, પર આત્મા કોઈ કાળી ટોપી રૂપ ન થાય. આત્મા તો જીવ રૂપ જ રહેશે હંમેશા. જીવનો સ્વભાવ બદલાય, એના આકાર રૂપ થાય, એના બાહ્ય સ્વરૂપ રૂપ થાય. એટલે કે જ્ઞેય જે રૂપે છે એ રૂપે તે જાણે ને ઉપયોગમાં એ પ્રકારથી ચાલે. પણ ઉપયોગની પરિણતિ તો તમારે અંદર જીવી હોય એવા પ્રકારની રહેશે. ઉપયોગમાં કોઈ પદાર્થ ચાલવાથી ઉપયોગ તે રૂપ ન થાય. અગર તે રૂપ એમ ઉપયોગ થઈ જતો હોય તો કેવલી ભગવાન લોકાલોક બધાને જાણે છે, તો એ હંમેશા લોકાલોકના પ્રમાણે જ પરિણમે, પણ એ તો હંમેશા સ્વરૂપસ્થ રહે છે. એ તો પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત છે. એટલે આ પુસ્તકને હું પુસ્તક રૂપે જાણું, એનું નામ છે કે તે આકાર રૂપ થવું. જ્ઞેય આકાર. હા,
પણ એનો અર્થ નથી કે હું પુસ્તક થઈ જાઉં. પુસ્તક થઈ જવું એનો મતલબ આકાર નથી. પુસ્તક નથી થઈ જતો. પુસ્તક જેમ છે એમ હું જાણું છું, બસ. श्री सहज सुख साधन में और पूज्य शिव भी कहते थे, अपन कपड़े का दृष्टांत देते हैं, उसके हिसाब से समझे कि अपने को मालूम है कि कपड़ा शुद्ध है, लेकिन उस पर जो मलिनता है, तो मलिनता से पूरा उसको कपड़े को भी मलिन मानते हैं पर्यत, क्योंकि जब मलिन, और उसको अपन जानते हैं कि मलिनता दूर करने से कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा शुद्ध ही है पर्याय में। अब पर्याय कपड़ा शुद्ध ही नहीं है, कपड़ा अशुद्ध है, उसमें शुद्ध होने का सामर्थ्य है। दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। ऐसा नहीं कि पहले कपड़ा शुद्ध था, फिर अशुद्ध हो गया, फिर शुद्ध हो गया। ये आत्मा पे नहीं घटेगा। आत्मा पहले से ही अशुद्ध है, परंतु उसमें पहले से ही शुद्ध होने का सामर्थ्य है। अनादि से जब से वो अशुद्ध है, तब से ही उसमें शुद्ध होने का सामर्थ्य। वो सामर्थ्य जब जागेगा तो वो सामर्थ्य है, वो दृष्टि का विषय, वो कारण परमात्मा कहलाता। सोना भी, सोने का किसी का भी दृष्टांत हमेशा एक देश होता है, पूरा नहीं। सोने में हमेशा अलग अलग रूप होने की क्षमता है, हार होने की क्षमता है, पर वो जब होगा तो होगा शुद्ध हो। सोने में हमेशा शुद्ध जो सुवर्ण पाषाण है, उस सुवर्ण पाषाण में हमेशा सुवर्ण रूप होने की योग्यता है, पर जब वो सुवर्ण पाषाण रूप होगा तब उसको हम सोना कहेंगे, और जब तक वो नहीं होगा तब तक उसको हम सुवर्ण पाषाण कहेंगे, वो पत्थर है। इसलिए जब हम आत्मा अनंत चतुष्टय रूप होगा तब हम उसको कार्य परमात्मा कहेंगे, और अनंत चतुष्टय रूप जब तक नहीं होगा तब तक वो आत्मा है और वो कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा हमेशा रहता है। कार्य परमात्मा की नवीन उत्पत्ति होती है, कारण परमात्मा सदैव रहता है, और कार्य हो जाने के बाद भी कारण परमात्मा का नाश नहीं होता है। केवल ज्ञान होने के बाद भी कारण परमात्मा रहेगा। अगर कारण का नाश हो गया तो अगले समय का कार्य नहीं होगा। अभी अपना जो कारण परमात्मा है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि रूप है, तो उपादान की योग्यता उसकी ऐसी है, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रूप परिणत होता है। वो कारण अपना वो है। अब जब यही केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये ही कारण है, वो केवल ज्ञान का कारण होगा, पर ये कारण मौजूद रहेगा। अभी अशुद्ध कारण रूप है, फिर शुद्ध कारण रूप होगा। कारण का नाश होगा कभी, अगर कारण का ही नाश होगा तो कभी कार्य की उत्पत्ति होगी नहीं। हाँ, कारण का नाश होगा तो किसका नाश हो जाएगा? द्रव्य का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से सत्य है, उसका कभी नाश होता, असत की कभी उत्पत्ति होती नहीं। कार्य हो जाने के बाद भी कारण रहेगा, क्योंकि अगले समय फिर से कार्य करना है उसको। प्रत्येक समय की सिद्ध पर्याय अलग अलग होती है। एक समय की सिद्ध पर्याय, फिर दूसरे समय की सिद्ध पर्याय, तो वो पर्याय कहाँ से आई? एक समय की सिद्ध पर्याय नष्ट हो गई, फिर अगले समय की पर्याय आई, वो कहाँ से आई? कारण नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? उस कारण परमात्मा से आई, वो शुद्ध कारण परमात्मा है। वो जैसा उपादान होगा वैसी। अगर उपादान शुद्ध है तो शुद्ध पर्याय रूपी होगा, उपादान अशुद्ध है तो अशुद्ध परिणति रूप होगा। जैसा कारण होगा, इसी कारण कहो, उपादान कहो, योग्यता कहो, शक्ति कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। वही शक्ति, और शक्ति का अर्थ समझ लेना। शक्ति का अर्थ लोग वर्तमान में अभिव्यक्ति मानते थे, ऐसे अभिव्यक्ति का सामर्थ्य। शक्ति, सामर्थ्य, उपादान, योग्यता, कारण, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं, और अभिव्यक्ति, कार्य, पर्याय, ये सभी
एकार्थवाचक, परिणति, स्थिति, दशा, ये सभी एकार्थवाचक शब्द कहलाते हैं। मूल भाव अपन पकड़ लेंगे तो सब पकड़ में आ जाएगा। चलो, हजी कोई ना आ विषय शंका हो तो पूछिए। इसमें क्लैरिटी बराबर होनी चाहिए। ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, हमको काम क्या करना है, तो अब हमको करना क्या है? हमको कार्य का चिंतन नहीं करना है, कार्य की प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमको कारण देते रहने का है। कारण को हम, अगर कारण पर ध्यान होगा, कारण देते, अब हमको ज्ञान, ध्यान, तप, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये कहां करना है? ये बताओ, किसका करना है? कारण का करना है, कार्य का नहीं करना है। कार्य तो उस कारण से होगा, उस कार्य से अपने आप होगी। तो हम आत्मा का आश्रय लेने से केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान रटते रहने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए आत्म भावना भावता जीव कहे लहे केवल ज्ञान। ऐसा उस कारण परमात्मा की उपासना की जाए तो कार्य परमात्मा की निष्पत्ति होगी ही। कारण भी आ जाए। अपने को भूख लगी है तो મને ભૂખ લાગી છે और फिर भोजन का चिंतन करो। अपने भोजन का चिंतन करने से और ऐसे भूख लगी से नहीं, आप कारण दो। भूख मिटती किससे? भोजन से। अब भोजन करो तो भूख मिटेगी। ऐसे केवल ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? तो आत्मस्वरूप के चिंतन, मनन, निधिध्यासन और उस आत्मस्वरूप को शुद्ध करने से। वो किया करें अपन। केवल ज्ञान ते कार्य ने आत्मभावना भावता ई कारण। केवल ज्ञान त्रिकाली नहीं है। केवल ज्ञान अभी नहीं है, त्रिकाली कहां से होगा? आत्मा त्रिकाली है। हाँ, इसलिए आत्मा की भावना त्रिकाली आत्मा है। त्रिकाली आत्मा है, उसमें से केवल ज्ञान। त्रिकाली का मतलब 3 काल में रहने वाली वस्तु। तो 3 काल में आत्मा है। केवल ज्ञान 3 काल में रहने वाली वस्तु नहीं है, क्योंकि वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, पर आत्मा है। इसलिए केवल ज्ञान है वो सादी अनंत है और आत्मा अनादि अनंत है। ऐसा समझना। ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत है और केवल ज्ञान सादी अनंत है। तो वो कार्य कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो कार्य, और जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, पहले से ही है, वो कारण कहलाता। ऐसा ये कार्य कारण संबंध समझना चाहिए। इसलिए अपने को स्वभाव दृष्टि रखनी चाहिए। स्वभाव में से ही उस कार्य की निष्पत्ति। स्वभाव शक्ति एक ही बात। अभी जैसे ही हम स्वभाव शब्द कहते हैं तो भी जीव को शुद्धि पे नजर जाती है। शुद्धि पे नजर नहीं, शक्ति पे नजर जानी चाहिए। स्वभाव शक्ति का नाम है और वो द्रव्य में हमेशा से मौजूद है। मेरे ख्याल से इतना बराबर है। अब किसी को कोई संशय? इसका जब वेदन होगा ना, जब हम दृष्टि करेंगे ना, वेदन होगा, तब पता पड़ेगा ये सारी चीजें कि ये सब काम हो कहां से। इसलिए जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं होता है तो साधना बनती नहीं। चित्त हमेशा विकल्पों में, भ्रमों में और अनेक प्रकार की चिंताओं में उलझा रहता है, क्योंकि सत्य का निर्णय नहीं। इसलिए हमेशा भ्रम बना रहता है।
निश्चिंतता नहीं रहती इसके कारण, और मानसिक अशांति उससे रहती है। और पदार्थ का निश्चय हो गया तो हमारे जीवन में से भीतर की मानसिक अशांति, भ्रम, चिंताएं वो चल। जब तक भ्रम है तब तक हमको मार्ग के विषय में बहुत अधिक ऐसे आवो मार्ग से आम आ साचो को पेलो सोच, मैं चल रहा हूं वो ठीक चल रहा हूं कि नहीं, मैं सच्चा हूं कि नहीं, आ बतावे छे ये बराबर छे कि आ बतावी बता बराबर छे, ऐसा क्यों? निश्चय। इसलिए लास्ट अंतिम दोष कौन सा बताया पता है? 254 पदार्थ नो, और वो अनिर्णय होता है तो फिर अनिश्चय की, एक संशय की अवस्था हमेशा बनी रहती है। तो निर्णय किसका करना? तो कारण और कार्य का निश्चय करो। कार्य का निश्चय करो कि वास्तव में मेरी शुद्ध परिणति कैसी है, मैं कैसा हूं वास्तव में। तो भगवान का कि मैं भगवत स्वरूप, ये निश्चय होना चाहिए। अब भगवत स्वरूप वर्तमान में तो नहीं हूं, भगवत स्वरूप होने का कारण क्या है? तो उसकी श्रद्धा करो। साध्य, साधन और आश्रय, इन तीनों का निश्चय होना चाहिए हमको। साध्य, साधन और आधार, अथवा अधिकरण, साधन और साध्य। अधिकरण, साधन और साध्य। अधिकरण है वो हमारा कारण परमात्मा है। साधन है वो वर्तमान का अपना उपयोग है, मति श्रुत ज्ञान अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, ये साधन है। उस परम पारिणामिक जो भाव है वो उसका अधिकरण है। और साध्य क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय रूप परमात्मा शुद्धि, ये हमारा साध्य। ये साधना है। हमको समझ में आ रही बात? साध्य तो हमारा लक्ष्य क्या है? कैसा बनना है हमको? केवल ज्ञान स्वरूप बनना, सिद्ध अवस्था है वो साध्य है। और वो तो एक बार लक्ष्य हमने, अब उसका साधन क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इसका साधन है। इतना समझ में आ गया? अब उसका आधार क्या है, आश्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट कहां से होंगे और कैसे होंगे? तो अपना जो कारण परमात्मा है वो उसका आश्रय, उससे प्रकट होंगे। कार्य परमात्मा को, लक्ष्य को बार बार याद करने से वो प्रकट नहीं होंगे। आपको किसका आधार लिया जाए कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उस रूप आत्मा परिणत हो, तो स्वयं ही अपने स्वरूप का ही आश्रय लिया जाए, तो ही उसकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणति होगी। अब इन तीनों का निश्चय करना चाहिए। स्व का निश्चय करें सबसे पहले कि जो निरपेक्ष स्व है, शुद्ध अशुद्ध से रहित, वो मेरा आश्रय है, वो मेरा अधिकरण है, वो मेरा आधार है, उसके आधार से सब होगा। इसलिए सत्य को पकड़ा जाए। किसको पकड़ा जाए? सत्य को पकड़ा जाए। उस सत्य के आधार से चित्त और आनंद प्रकट हो। हमारा ध्येय क्या है? चित्त और आनंद। अभी हम वेदांत की भाषा से चलेंगे, जिस प्रकार से समझ में आए उस प्रकार से चलेंगे। सत्य कारण परमात्मा है और चित्त और आनंद, मतलब
शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, वो हमारा साध्य है। साध्य क्या है हमारा? चिदानंद, ये हमारा साध्य है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये अपना साध्य है। और सत्य है वो उसका कारण है। और इसका साधन क्या है? तो साधन चतुष्ट है, उनके शम संवेग आदि अथवा शम दम उपरति वो कहते हैं, अपन उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि कहते हैं। तो सत्य को पकड़ा जाए, चित्त और आनंद। अब उपासना किसकी करनी है? कारण की उपासना करनी है। कारण की उपासना करने से कार्य की उत्पत्ति होगी। अभी कारण क्या है? तो सत्य कारण है, क्योंकि जो हमेशा मौजूद रहता है वो कारण है। सत्य को पकड़ा जाए तो चित्त और आनंद रूप तो है ही, क्योंकि वो सत्य का स्वभाव है। इसलिए हम किसको पकड़ें? जो वर्तमान में जो वस्तु होगी उसी को पकड़ा जाता है। जो नहीं होगी उसके आधार से उपयोग नहीं टिकेगा, वो उपयोग कल्पना में उलझेगा। अभी हम केवल, आप ऐसा चिंतन करो कि मैं लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान स्वरूप, मेरे अंदर इस तीनों लोकों को दूर करने की, मेरे तीनों लोकों को नष्ट करने की शक्ति, ऐसी अनंत ज्ञान शक्ति स्वरूप हूँ, अनंत वीर्य स्वरूप हूँ, अनंत सुख स्वरूप, आनंद आनंद आनंद। अब ये आपका उपयोग कहाँ जा रहा है बताओ? हाँ। क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं उस कल्पना में आप उपयोग ले जा रहे हो। समझ में आ रही बात? अब वो उपयोग कल्पनाओं में झूल रहा है। जैसे तो सपने देखा करो, हम सपने देखते कि नहीं देखते? सपनों में ऐसा आएगा कि मैं राजा बन गया, फिर ये हुआ वो हुआ, तो काल्पनिक संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही इस जीव को काल्पनिक संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसी उसकी दशा नहीं है उस प्रकार से उसका उपयोग आकार ले रहा है। जो दशा नहीं है उस दशा रूप जो उपयोग आकार लेता है ना, तो भ्रम दशा आती है। उपयोग में, कल्पना में काल्पनिक संतुष्टि होती है। इसलिए कृपालु ने 254 में वो भी कहा, कल्पित समता। इन चीजों को हम बहुत गहराई से उतरेंगे, साधना करेंगे, तब समझ में आएगा कि ये कहाँ से लिखी है उन्होंने। ये जीवों में ये सब दोष पाए जाते हैं, कल्पित समता। और ऐसे बहुत से दर्शनों में होता ही है। बस एक बार पुस्तक से जान लिया कि मैं तो पर ब्रह्म हूं, बस घूमता रहता है, मैं पर ब्रह्म हूं ऐसा जान करके। पर तू पर ब्रह्म है वो शक्ति अपेक्षा से है, पर जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक तू उसको मानेगा तो भ्रम ही है। और उसको तू बार बार उपयोग लगाता रहेगा उसमें कि मैं पर ब्रह्म हूं, मैं पर ब्रह्म हूं। उसमें अगर बार बार उपयोग लगाएगा तो तेरी भ्रम दशा आएगी। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये किसी को, लोगों को सुनाना मत ज्यादा हो, भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये पचा नहीं पाते लोग। कोई होते हैं, ये तो अपने पर्सनल होते हैं, वही पचा पाते हैं उसको कि पर ब्रह्म का चिंतन करने से भ्रम दशा बनती है। तो हाँ, पर ब्रह्म का चिंतन करने से भ्रम दशा बनेगी। क्यों भ्रम दशा बनेगी? कि तू जो उपयोग तेरा जिस रूप हो रहा है उस रूप तो अपने आप को मान रहा है, और वो तो कल्पना में उलझ रहा है उपयोग तेरा। तुम अब टिकेगा कहां? तुम्हारा उपयोग ही कल्पना में उलझ रहा है सारा का सारा। उपयोग को टिकाने के लिए ठोस आधार चाहिए। ठोस आधार से टिकेगा। कल्पनाओं में जितना उपयोग जाएगा उतनी काल्पनिक संतुष्टियां होगी, काल्पनिक अनुभूतियां होगी, और वो परब्रह्म भी तेरा काल्पनिक ही होगा, तेरा माना हुआ होगा, तेरी कल्पना होगी। और इसलिए कल्पना में परमात्मा के दर्शन होते हैं। आप परमात्मा को जिस रूप में चिंतन करो उस रूप में आपको देंगे। आप बारंबार पारसनाथ भगवान की प्रतिमा को चिंतन आपके सपने में आएगी, आपको वैसे ही अनुभूति।
आप जिस रूप में उसको लोगे उस रूप में आपको वो दिखेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो उस रूप होगा नहीं। जैसे टोपी अपने को टोपी के आकार रूप आत्मा होता, पर आत्मा टोपी होता नहीं, आत्मा आत्मा ही नहीं। ऐसे ही भले आप पर ब्रह्म का चिंतन करते रहो कि मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनंत आनंद स्वरूप हूं, वो आत्मा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तुम उपयोग को आधार नहीं दे रहे हो, कारण नहीं दे रहे हो। तो कब होगा ऐसा? तो जब उपयोग ऐसी जगह पे टिकेगा जो वास्तविक सत्ता है। अभी काल्पनिक सत्ता में उलझ रहा है, वास्तविक सत्ता में टिकाया जाए इसको। और वास्तविक सत्ता क्या है? वास्तविक सत्ता वर्तमान का अपना अस्तित्व है, जो कारण रूप है, सत रूप है। उस वर्तमान की सत्ता में, वर्तमान के अस्तित्व में, उस वर्तमान के मैं में उसको टिकाया जाए, ये कारण परमात्मा है। स्व में स्थिर होने से परब्रह्म का साक्षात्कार हो, पर ब्रह्म का रटन लगाने से पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता नहीं। जब स्व में स्थित होंगे, राग द्वेष की निवृत्ति होगी, तब जाकर के आत्मा साक्षात होगा। इसलिए तो कोई लोग मंत्र की तरह रटते रहते, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम। तो क्या हम सजात्म स्वरूप हो जाएंगे? हुआ? कितने लोग रटते ही रहते, क्या हम सजात्म स्वरूप हो जाते हैं? ये तो अपने मन को अन्य विकल्पों से रहित होने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं कि बहुत चलता है अंदर, परंतु इस सहजात्म स्वरूप रटते रटते ही अगर आप गाफिल हैं तो सहजात्म स्वरूप का क्या? सहजात्म स्वरूप के अनुसार दशा नहीं बन रही है। सहजात्म स्वरूप की दशा बननी चाहिए, और उसको रटने से वो दशा नहीं बनती है, उसको कारण देना पड़ता है। उसको अपने आत्म स्वरूप को राग द्वेष रहित निर्विकल्प करना पड़ता है। विकल्प रहित होने से परब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उस परब्रह्म के रटने से नहीं होता है। इसलिए विकल्प के नाश का उद्यम है, और विकल्प का नाश कहां होगा? आपकी जो शक्ति है ना वर्तमान, उसको आधार देना पड़ेगा। ये जो वर्तमान का मैं है उसका आधार देना पड़ेगा, कल्पित मैं का आधार नहीं। मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, ये आपका कल्पित मैं है, कल्पना कर रखी उसकी, पर ये वास्तविक मैं है जो वर्तमान में है, जो सतरूप है। इसलिए तो कहा वो एक शुद्ध सदा अरूप, ज्ञान दर्शनमय। आधार इसको देना है, इसका आधार देना, वो कारण परमात्मा। सॉरी, आज का अपना 2 दिन से चल रहा है, पर इसको बार बार, कल का सत्संग है वो भी बार बार अपने को सुनना चाहिए, और उसको निश्चय कर, सुनना क्या? निश्चय करना। कितनी बातों का निश्चय करना? अधिकरण का निश्चय करो, साधन का निश्चय करो, और साध्य का निश्चय करो। हाँ, माइक अपन सम्यक, हाँ, सम्यक दर्शन या कि सम्यक ज्ञान बीज है, केवल दर्शन केवल ज्ञान का। तो फिर कारण परमात्मा का उपयोग करेंगे तो फिर पहले तो सम्यक दर्शन कार्य होगा, तो वो कार्य परमात्मा नहीं कह सकते, तो वो नहीं, साधन में क्यों? कार्य और कारण केवल परमात्मा ही, प्रत्येक पर्याय कार्य है। तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय है वो कार्य है, और श्रद्धा कारण है। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, वो कारण है, और सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है, वो कार्य है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, वो कारण है, और सम्यक ज्ञान कार्य है। तो कार्य कारण हमेशा है। अभी हम मति श्रुत ज्ञान है वो अपना कार्य है, और ज्ञान है वो अपना कारण। ऐसे कार्य कारण हर परिणति में कार्य कारण होता है।
इसलिए बहुत चिंतन मंथन करके फिर ऐसा निश्चय करना कि अब मुझे करना क्या है। ये सारी माथाकूट करके चिंतन मंथन करके मुझे करना क्या है, और अंत में अपने जो भी सम्यक प्रकार से विवेक से अगर वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा, निधिध्यासन करेगा, उसको एक ही वस्तु हाथ में लगेगी। और वो क्या हाथ में लगेगी कि येन केन प्रकारेण मुझे वीतराग होना है, येन केन प्रकारेण मुझे समता में रहना है, और उसका एक ही साधन है मेरा सत्स्वरूप। उसमें मुझे उपयोग लगाने का है, और कहीं लगाने का ये ही निर्णय हाथ में आएगा, और कोई निर्णय आएगा ही नहीं, परंतु ये अपने अंदर से निकाला करे, अपनी मौलिकता से उसको निकाले, किसी के कहने से नहीं, अपने अभ्यास से निकाले। हम क्या है कि किसी के कहने से वो जल्दी मान लेते, अपनी मेहनत करते नहीं। अपनी मेहनत करेंगे और ये जो अपना निर्णय होगा कि इस बात सही है, अंत में यही करना है, और कोई करना। कृपालु देव ने यही कहा ना, ज्યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષ रहित हो ते मारो अंतिम सत्य। तो अंतिम जो करना है वो तो यही है। आ देह थी करवा योग्य तो एक ज कार्य है, कोई थी राग करो ने, कोई थी द्वेष करो ने, पर ये अपना निर्णय होना चाहिए। नहीं, ये करना है, ये कार्य परमात्मा, ये काम करना है अपने को, लक्ष्य है अपना। और कारण परमात्मा तो सत्स्वरूप का आश्रय। अपना जो सत्स्वरूप है उसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, जो करना है उसको, और उसके लिए जो जो साधन हैं, उस राग द्वेष रहित होने के लिए उस चैतन्य चिंतामणि का स्मरण जिस जिस प्रकार से बना रहे, अपने सहज स्वभाव का स्मरण जिस जिस प्रकार से बना रहे, उस प्रकार से सत्संग का अवलंबन लो, शास्त्र का अवलंबन लो, और राग द्वेष इच्छाएं घटाने के लिए तप त्याग का अवलंबन लो। ये सब उसके लिए। पर व्यक्ति क्या है, साधन को जब साध्य मान लेता है तो ये साधन का लक्ष्य खत्म। 100 बातों की एक बात। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ये जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुचे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। नमस्कार। आत्म शांति शांति शांति।